Okay, so we are starting GS paper 2 today, and governance questions of 2014 are here. I had already marked them on my note, and I'm going to show some important aspect. But before that, take a screenshot if you need to know the questions. Then, before going into the answers, I would recommend that you have some aspect of governance very clearly, uh, prepared. It should be on your fingertip, like principles of governance, eight principle. So I prepared this Peter arc, P for participation and so on, so you can get the acronym. So these eight principle and some important lines, like if you can write in conclusion, if there's a question on transparency, so if you could write, information needs to be leveraged as core strategy for monitoring implementation, because many often the questions are on implementation and issues related. So these things can be utilized, and I have prepared these things over here, and that helped me to get very good marks in first attempt and second too. Like 115, 115 is a very good mark. Like it's not an easy thing to come by, and 120 I think plus in, but that's the thing is there. So how do I score so much in paper 2? Like paper 2 I take my forte, and there are some things, there are some ways, like in economy question there are some specific way where you have to write answer in some certain fashion. For example, in paper 2, unless until you are providing good example, like you start your answer with article, you provide section, subsection, law, and then have this kind of approach, like parameter based, systematic, ordered, and effective. Take this, like constitutional, statutory provision, national commission, and then there are so many examples, not just one. So if you could prepare your answer and you have this thing like barrier to governance, so I'm not quoting myself, I'm quoting second arc, and these things are exactly there. So you need to remember few, and if there are more, like there are eight principles or aspect pillars of good governance. So you have to be very effective there, and your answer, your representation should be very effective. Apart from those things, I have my handwritten note which are very precise and effective in similar fashion. So if you are talking about citizen charter, so you should have a very good definition prepared, your principles, your objective, and similarly all other aspect of governance, like aspect of good governance include e-governance, citizen charter, people participation, public sector, corporate governance, and so on. So these topics are the building blocks, they will have to be shifted here or there in order to make a good governance, or basically governance part of paper GS paper 2. So be aware of these things, prepare them beforehand, and have a good grasp. Now that being said, let's go to our question answers. So our first, okay, let's finish this thing so that we don't have to worry about being stuck. Okay, that does it. So first question is, an athlete participation in Olympic for personal triumph and national glory. Victors are served with cash incentive by various agency. Now, who agency? Various government agency. On their return, discuss merit of state-sponsored talent hunt and cultivation as against national as the national of reward mechanism as encouragement. Rational, sorry, I mistook it as national. It was okay. So it got separated into two. Okay. Rationale of reward mechanism. So first they are making this huge statement, and what does it all talks about is uh, Olympic performance and how we treat, like India have a very different system than that of China or US.
US and China follow a system where they are basically preparing the talent. They are seeding the talent. They are like grooming the talent. But in India, it only happens that talent is recognized only after it has been recognized or performed or achieved something at a global platform. So that strategy leads to very poor performance of India. Despite having 1.3 billion of population, we are like getting 6 7 medals. So that's like a sense of ridicule and matter of shame. Yet you see the allocation towards sports. So there is so much potential that is going to waste, and that's why this question is here. And it talks about merit of state sponsor, talent hunt, and cultivation. What if we were to put those things rather than giving like Olympic gold medalist titles, money, 5 crore, something, something. If we could put that into infrastructure mechanism at ground level, so that could produce a lot many gold medalists. But this is not happening. So this is the question and its intent. And these questions are like thought provoking. You should have a well established uh, disposition and balance of judgment in these questions. So let's say, see what our answer or introductions are. Again, reminding our objective. This is GS paper 2, stage 1. In stage 1, we have only 4 objective: understanding the demand of the question, addressing all part, writing a good introduction, and then having a framework. So these 4 objectives are most important or core of the GS mains writing. So we are looking at it. Athletes like Neeraj Chopra, who won gold medal at the Olympic for themselves and the nation, does not get much support in days of their struggle by agencies or state. But after winning, they are sold with cash incentive and other benefit like brand ambassador role in advertising. Very good example. I mean, very beautifully you have addressed that whole statement. Now you will have to talk about merit of this against this is being followed. So we'll have to discuss the merit, but before that we'll have to talk about this is being followed. Other alternative is talent hunt and cultivation, and there are merits to it. But reward mechanism after winning has limited result as compared to state sponsor talent hunt mechanism. Very good connecting line, beautifully written. Like everything is in its place. Then you talk about merit. Merit, you have to think right then and there, but that's a different practice we'll do in stage 2 and 3, because like you cannot just have a well written answer for this thing. Though with due practice, you can acquire some parameters, okay, to think on, and that gives you a very good direction to produce or to create a good answer, because this is not something you can like have anywhere written. These are somewhat current based trigger, and you'll have to think right then and there. And if you're writing a good parametric answer, then it's very very like rewarding. Government initiative like Hello India, Target Podium, Star Talent, Search Portal, etc. provide initiative. See, like I told you, here like few things you should always follow. Give global example. There is a part in governance, best practices, okay? So always like adopt these things. Any best practice you can find, like China, like US, okay? So you can put that into your conclusion or way forward, like this is what you have done here, and that's like very accurate. See, so I would say this is somewhat other than this like part, like we are not writing, it's a very very good result. So bravo to you. Next, what have Mr. S written here? Many national and state honor along with private agency
Okay, that is something I also thought. Like private agencies also go into honoring and rewarding athlete who participated in Olymp. Participated, nahi. Participation doesn't get a prize, sir. But still, who achieve something. There are so many participants, but they're not even recognized. Forget about prize. Rewarded with cash incentive by respective government as well as. Now again, you already have said, no, national and state and yeah, then again you are saying ki they are rewarded. So redundancy comes back by various agencies, which has been observed in good. So other than this part, again you are also hitting the bullseye. Now you are talking about that, and it's a relevant introduction. Merit of state. Now the connection line is missing here. What was in copy one, like you can have this connection line, it would give a good impression. Merit of state sponsored talent hunt against a rational of a reward mechanism. Okay, that's also because the discuss framework is there and you are just answering one part. So again you can talk about this and then the way ahead. Okay, let's go to the. So these things are good. There is nothing for me to add or subtract. So yes, we'll address the content part when we'll have the other blocks. After mastering it, we'll have some blocks. I will provide them, and these blocks are like to be arranged according to the demand of question. You don't like what the Deepak Rawat, the IAS, I think Nainital says, no, less is more. He says less is more, and that has been like the core mantra for many people who are getting into IS in first, second, or even last attempt, who are later on like applying this thing. So we'll get to that in later stage. Hold your horses till then. Second question is: should the premier institute like IIT, IIMs be allowed to retain premier status, allowed move academic independence in designing courses, and also decide made criteria of selection of a student? So basically what is it is talking about autonomy for premier institutions. Discuss in light of growing challenges. So this question basically is asking, should there be more autonomy and independence for premier institution like IIT and IIM? And we have to discuss in light of growing challenges. What challenges there are? Like if you saw in previous question, at the same time, this question was asked about academic uh, being consumer oriented and decreasing quality. So there was this emphasis on change and is still being done. So we brought Institute of Eminence Act was further promulgated, and they, like, rather than giving them, new Institute of Eminence were envisaged. नए सपने देखे भाई हमने, अभी आए तो नहीं है, कब तक आते हैं देखना है. तो क्वेश्चन क्या कह रहा है भाई कि हमें ऑटोनॉमी ये सब देना है. ठीक है, तो आप कैसे, अगर आप चैलेंजेस आइडेंटिफाई कर पाओगे तो बहुत अच्छी बात है. चैलेंजेस क्या क्या हैं भाई? देखो, ऐसे इंस्टीट्यूट के लिए जो हमारा QS रैंकिंग होती है, अगर वहाँ से कुछ बात कर पाओ ना, तो बहुत अच्छे से दिखा देगा कि हमारे पास मुश्किल से 10-15 इंस्टीट्यूट आते हैं टॉप 500 में, जबकि बाकी चाइना US के देखोगे तो हज़ारों हैं, जो कि हाईलाइट कर रहे हैं कि अंडर गोइंग चैलेंजेस क्या हैं. इंफ्रास्ट्रक्चर का है, फॉरेन स्टूडेंट का है, आपके स्टूडेंट जो बाहर जा रहे हैं वो चैलेंज है, ब्रेन ड्रेन का जो है, तो ब्रेन रिटेंशन एंड ये सारे जो है हमारा. फिर रिसर्च एंड डेवलपमेंट का कि इंडियन जो है बाहर भाई बेसिकली ब्रेन ड्रेन का कॉन्सेप्ट है. तो दीज वर द चैलेंजेस. अगर हम इस चीज़ को एड्रेस कर दें अपने IIM और IITs को ज़्यादा ऑटोनॉमी और इंडिपेंडेंस दे, तो कैन इट लीड टू बेटर आउटकम, बेटर इंडस्ट्री एकेडमिया linkages and translation of academic research into industrial products.
तो दीज आर द एस्पेक्ट, उस टाइम पे था, अभी भी है, स्टिल रेलेवेंट है, आने के चांसेस हैं। बहुत अच्छी बात है, क्या बात है भाई, जो मैं बता रहा हूँ वो आपने लिख रखा है। वर्ल्ड रिनाउंड यूनिवर्सिटी लाइक MIT एंड कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी टॉप in QS World University ranking follow model of academic autonomy. In the similar fashion, Premier Institute of India can try to adopt these method and become world premier institution. Very good. Advantage of academic administrative autonomy challenges. यहाँ पे शॉर्ट में आपको बताना था, बट उससे पहले चैलेंजेस आपको, लाइक चैलेंजेस पहले एड्रेस करो, फिर आप बेसिकली बता सकते हो कि उसके प्रॉस क्या हैं, राइट, कि देयर आर सम प्रॉस एसोसिएटेड विद इट, एंड फाइनली डिस्कस फ्रेमवर्क है तो हम उसमें कुछ चैलेंजेस भी, सॉरी लिमिटेशन भी बात कर सकते हैं, ठीक है। तो फर्स्ट विल टॉक अबाउट ग्रोइंग चैलेंजेस, देन ऑटोनॉमिक एडवांटेजेस, लिमिटेशन, एंड देन फाइनल कंक्लूजन कि हाँ भाई हमें देने की ज़रूरत है, एंड रादर देन देने की बजाय ये इंस्टीट्यूट ऑफ एमिनेंस लेके आए थे, ठीक है। तो दिस इज योर फ्रेमवर्क, एक ये थोड़ा सा ऊपर नीचे हल्का सा हो गया, इफ़ यू कैन डू दैट इट्स बेटर। देखते हैं भाई सेकंड मिस्टर ने क्या लिखा है। In recent NIRF report by Ministry of Education ranked institute like IIM in top list of academic performance. Such institutes help in setting standard of premium status and also in designing courses and स्टूडेंट सिलेक्शन। अब ये चीज़ें नहीं चल सकती हैं, ऐसी चीज़ें नहीं आप डालें, है ना। फॉर्मुलेट करें एक बार इंट्रोडक्शन पे, 1 मिनट जो आपको मिलता है तो उसमें बिल्कुल आपको क्वेश्चन पढ़ना है, इंट्रोडक्शन फॉर्मुलेट कर लेना है, और साथ ही साथ आपको कंक्लूजन का एक रफ आइडिया होता है। अगर आप क्वेश्चन वहीं पे ग्रास्प कर लेते हो ना, तो आप इंट्रो कंक्लूजन बड़े आराम से थोड़ा सा सोच सकते हो। तो वो आप आइडिया यहाँ पे लिख लो, फाइनली जब आप लिख लोगे ना बॉडी, तो आप इससे रिलेटेड कनेक्टेड क्वेश्चन से बेस्ड एक अच्छा कंक्लूजन दे सकते हो। और मोर इम्पोर्टेंटली आपको कंक्लूजन देना है कि नहीं, आप पहले डिसाइड कर लेते हो। बट continuing reading, but the low ranked institute and the cause of their undermined performance has been neglected to growing challenges. अब आपने जो बातें कही हैं, ये पहली बात है कि थोड़ा सा नेशनल लेवल पे रह गया। आप खुद ही जब बात कह रहे हो कि ऑलरेडी परफॉर्म कर रहे हैं तो फिर ज़रूरत नहीं है। और दूसरा ये कि इनवर्ड लुकिंग है, जो आप NIRF रिपोर्ट की बात कर रहे हो तो इट इज़ इनवर्ड। आप सोचो कि घर में ही 5 कंपटीशन कराएं, 5 लोग हैं, एंड हम उन्हीं को रेट कर दें, तो इट डजंट रिफ्लेक्ट ऑन योर स्ट्रेंथ, राइट। सो इसलिए यहाँ पे हमें वर्ल्ड रैंकिंग ज़्यादा देखना है, और वर्ल्ड से हमें कॉम्पीट करना है, ना कि आपस में घर में ही डोमेस्टिक रैंकिंग नहीं देखनी है। सो कीपिंग दैट इन माइंड, आप ये इस फर्स्ट पार्ट में थोड़ा सा चेंज करेंगे, एंड देन फाइनली बात करेंगे। देखिए प्रॉब्लम आप यहाँ पे दिखाएंगे ना, QS में हम दिखा रहा है कि हम बहुत पीछे हैं, ठीक है, विच इंडिकेट्स टुवर्ड्स ग्रोइंग चैलेंजेस, ठीक है। लिंकेज मिल रहा है बहुत अच्छे से कि हमारा QS में रैंकिंग खराब आ रही है, वर्ल्ड रैंकिंग हमारी यूनिवर्सिटीज की खराब है, जो कि एक चैलेंजेस या पुअर सिचुएशन को दिखाता है जिसमें हमारे चैलेंजेस हैं। चैलेंजेस हमने दिखा दिया, फिर इन्होंने जो बात कहा है कि ऑटोनॉमी, और ये तो हम बात करेंगे ऑटोनॉमी और इंडिपेंडेंस देने के एडवांटेजेस ये होंगे जो कि इन इश्यूज को एड्रेस कर सकते हैं, ठीक है। ये हमने बात कर दी। फिर यहाँ पे हम लिमिटेशंस की बात करेंगे, कैसे लिमिटेशंस हैं, हमारे कॉन्स्टिट्यूशनल लिमिटेशन है, रिजर्वेशन है सबसे बड़ा। तो क्या आप ऐसे कैसे दे सकते हो जब आपका मेरिट ही नहीं इज प्रायोरिटी, जब आपको देना ही देना है इररिस्पेक्टिव ऑफ सीट, लाइक, तो आप कैसे कर सकते हो। तो ये लिमिटेशन एक बहुत बड़ा है, ठीक है। देन आपका पॉलिटिकल इंटरफेरेंस और ऐसे भी चीज़ें जो है, तो आप इसमें थोड़ा सा, वैसे चैलेंजेस का पार्ट है, लिमिटेशन में ये आ जाएगा। देन डूइंग सोशल जस्टिस, मतलब रिजर्वेशन तो बैक लगेगा, फिर आप सोशल जस्टिस कैसे करोगे, फिर तो वही आगे भी निकल जाएंगे, तो उनके बीच में बैलेंस बनाना बहुत प्रॉब्लमेटिक हो जाएगा। तो ये भी चीज़ है। वे हैड रिफॉर्म इन UGC अडॉप्टिंग स्टेम रिपोर्ट रिकमेंडेशन, ठीक है।
तो इसके लिए रिफॉर्म से ज़्यादा जो है जो इंस्टीट्यूट ऑफ एमिनेंस, ठीक है, दोनों वैसे चल जाएंगे उस टाइम के हिसाब से, इट इज़ ओके, बट फ्रॉम करंट पर्सपेक्टिव आपको इंस्टीट्यूट ऑफ एमिनेंस वाला आप एग्जाम्पल यहाँ पे डालते कि इसको अडॉप्ट करने के लिए गवर्नमेंट के लिए कहिए तो बेहतर होता। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हैज़ द कार्डर बेस्ड सिविल सर्विसेज ऑर्गेनाइजेशन बीन द कॉज ऑफ स्लो चेंज इन इंडिया? अब देखो इसमें सीधा सीधा उस टाइम पे था क्वेश्चन, यूपीएससी ने पूछा और देखो उसके बाद चेंज हुआ, हो गया ना भी कार्डर में चेंजेस। तो उस टाइम पे ये मान के चल रहे थे कि हाँ ऐसा है कार्डर बेस्ड, और सही में थे भी इशूज। तो नाउ दे हैव चेंज दिस थिंग इन इंडिया, क्रिटिकली एग्जामिन। तो आपको कार्डर बेस्ड जो सिविल सर्विस का एलोकेशन है उस पर बात करना था, उसमें क्या इशूज थे, ठीक है। तो क्या था वो, कॉज ऑफ स्लो चेंज इन इंडिया। तो कैसे आप दिखाओगे भाई, चलो देखते हैं। आर्टिकल 1312 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन डील्स विद क्रिएशन ऑफ ऑल इंडिया सर्विसेज। अब देखो आपने क्या कर दिया है, सिविल सर्विसेज को इक्वेट कर दिया है ऑल इंडिया सर्विसेज से, AIS से, ठीक है। तो यहाँ पे थोड़ा सा साइड हट गया है, सिविल सर्विसेज ऑर्गेनाइजेशन बीन कॉज ऑफ स्लो चेंज इन इंडिया, यस नो, ठीक है। आपको हाँ अगर ऐसी कुछ बात है तो आप आर्ग्यू करेंगे। इनिशिएटिव, कर्मयोगी, भारत दर्शन प्रोग्राम, और खुद ही जो भी रिसेंट जो चेंज हुआ ना कार्डर सिस्टम इन्होंने चेंज कर दिया, याद है ना, पहले आप एक कार्डर लेते थे, अभी जो है ना ये क्लस्टर हो गया है, इस क्लस्टर में तुम्हारे स्टेट होंगे, उनमें पूरे में घुमाएंगे आप कोई भी जो है, तो वो गवर्नमेंट ने अपने पास रखा है। और स्लो चेंज का वजह ये थी कि जो अच्छे जगह थी ना वहाँ पे अच्छे IAS ऑफिसर या जो वेल इफ़ेक्टिव या एफिशिएंट कहा जाए तो जाना नहीं चाहते हैं। जब वो जाएंगे नहीं तो फिर आप अगेन अच्छे लोग नहीं होंगे तो अच्छे चेंजेस कैसे आएंगे, तो स्लो ग्रोथ होगा। तो दैट वाज समथिंग विच वाज सीन एज द रीजन। योगेंद्र कमेटी फॉर ICT इन सिविल सर्विसेज, यहाँ पे हमें क्रिटिकली एग्जामिन करना है, ठीक है ना। क्रिटिकली एग्जामिन से क्या, पहले सिंपल एग्जामिन करते हैं कि क्या ये है, हाँ भाई है, देन आप क्रिटिकल पॉइंट और डालते हैं। सीधा सीधा अगर एग्जामिनेशन करते तो आप ये मिलेगा ना कि हाँ देयर आर रीजंस फॉर दैट, फिर आप बात कर सकते हो जब क्रिटिकल व्यू रखोगे इस चीज़ का, इस पूरे व्यू का, इस पूरे पॉइंट का क्या है कि सिविल सर्विसेज जो है कार्डर सिस्टम की वजह से स्लो ग्रोथ है। एग्जामिन करोगे सिंपल वे में आपका सिंपल आंसर आता है यस। क्रिटिकल होते तो कहते कि नहीं देयर आर अदर फैक्टर्स टू। क्रिटिकल व्यू जब लोगे एग्जामिनेशन करोगे तो कहोगे सिर्फ ये नहीं है और भी हैं, और फर्दर कार्डर के अलावा भी जो आपने चीज़ें लिखी हैं देन दे वुड बिकम रेलेवेंट। तो आपको ये आर्ट सीखनी पड़ेगी भाई कि कैसे इस चीज़ को यहाँ पे रेलेवेंट बनाना है, राइट। और ICT आपको कल मैंने ये एडवाइस किया था कि आप जब भी लिखें तो पूरा एक्सप्रेशन लिखें, क्या आप लेके आए हैं वो बात को। योगेंद्र कमेटी फॉर ICT इन सिविल सर्विसेज, सेकेंड आर्क रिकमेंडेशन। अब देखो इतना ना, आप कोई भी एक्सपीरियंस बंदा है, ठीक है ना, उससे पूछ लेना जिसने मेंस दिया है और क्वालिफाई किया है ना, नहीं क्वालिफाई वाला का तो छोड़ दो। तो आप इतना लिख नहीं पाओगे, I can give you in the written, you cannot write this much and expect yourself like to complete the paper, not possible। तो इसको क्लब करना होता है, ठीक है। टू ब्रिंग एफिशिएंसी, योगेंद्र कमेटी सेकेंड आर्क रिकमेंडेशन इन होता कमेटी रिकमेंडेशन, आप एक साथ क्लब करोगे, कैन बी इम्प्लीमेंटेड, ये आपका एक होता, समझ रहे हैं। तो ये तीन चीज़ें आप नहीं कर सकते, यू हैव टू कट इट शॉर्ट एंड मेक इट वेरी वेरी क्रिस्प। सो रिमेंबर दिस थिंग्स। बट हाँ आप सिंपल वे में कि किस चीज़ पे है आपको ये याद होना चाहिए कि होता कमेटी की क्या मेजर रिकमेंडेशन है, योगेंद्र कमेटी अगर है तो इसकी क्या रिकमेंडेशन है, तो वो आप कर सकते हो, ठीक है।
या तीनों का एक साथ नाम लो के जो भी इनकी कुछ कुछ है, ICT ऑन लाइन ऑफ रिकमेंडेशन ऑफ योगेंद्र, सेकेंड आर्क एंड होता कमिटी, ICT, ये हम ला सकते हैं। समझ में आ रहा है कैसे क्लबिंग करना है? तो दैट्स हाउ यू क्लब एंड कंक्लूड। नेक्स्ट क्वेश्चन से पहले देखें इन्होंने क्या लिखा था भाई। ओके, cadre based civil services organization means state of posting of officer is based on their examination rank and preference। ठीक है, बेहतर। cadre based CSO cause of slow changes। ठीक है, यहाँ पे ये हो गया। यहाँ पे फिर भी आप बात करोगे, एक लाइन अगर डाल पाओ कि दिस हैज बीन ऑफन सीन एज रीजन फॉर स्लो ग्रोथ है ये। ठीक है, तो भी चलेगा, ऐसे भी चल जाएगा। ठीक है, यहाँ पे अब आपको रीजन्स यहाँ पे करना था क्रिटिकल एग्जामिनेशन। हाँ, कि देयर आर अदर फैक्टर। इसमें क्रिटिकल में आप सिर्फ यही नहीं होता है कि अदर फैक्टर, यहाँ पे पहली बात ये करोगे कि हाँ जो कमी है उसमें क्या कमी, क्या चेंजेस आ सकते हैं। ठीक है, क्रिटिकल हमेशा ये होता है कि दिस थिंग इज देयर, दिस इज द इशू, दिस नीड्स टू बी चेंज। ये भी आप अगर सिंगल लाइन में कर रहे हो तो, नहीं तो फिर अलग अलग कर सकते हो, तो कोई इशू नहीं। सेकेंड आर्क हैज टॉक्ड अबाउट रिवीजन ऑफ कार्डर सिस्टम एंड गिवन रिकमेंडेशन लाइक स्क्रूटनी ऑफ परफॉर्मेंस ऑफ ऑफिसर यूजर का। बहुत अच्छा। ठीक है, तो आपने जो बात लिखी ना, ये फर्स्ट आंसर से बेहतर इसलिए होता है ना क्योंकि आपने उस चीज़ पे बात किया है, रिवीजन ऑफ कार्डर सिस्टम, जो कि यही जो मैं इनको बता रहा हूँ कि अडॉप्ट दिस थिंग टू ब्रिंग दैट क्लियर एक्सप्रेशन जो यहाँ पे आ रहा है। दिस कंक्लूजन टॉक्स अबाउट स्पेसिफिकली व्हाट इज आस्क्ड इन द क्वेश्चन। सो आप इस तरीके से अगर आंसर करोगे तो इट इज टू द पॉइंट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। टू पैरेलल नॉन स्कीम्स ऑफ गवर्नमेंट विज आधार कार्ड इन NPR नेशनल पॉपुलेशन रजिस्टर एज वन एज वॉलंटरी एंड अदर कंपल्सरी। हाँ, ये NPR हमारा कंपल्सरी है, आधार को हम लेके आए थे वॉलंटरी, बट दे खैर उस पर कमेंट नहीं करते हैं। हैव लेड टू डिबेट एट नेशनल लेवल एंड ऑल्सो लिटिगेशंस ऑन मेरिट्स। डिस्कस क्या करना है भाई, तो ये हमारा ये हो गया कि दो पैरेलल स्कीम आई हैं, उनके बीच में उसको लेके हमारा डिबेट हो रहे हैं, लिटिगेशन हो रहे हैं। अबे हमें सॉरी, यहाँ पे मैंने गलत जगह पे मार्क कर दिया। ठीक है, तो यहाँ पे हमें इसको यहाँ से करना है। ठीक है, ऑन मेरिट डिस्कस वेदर और नॉट बोथ स्कीम नीड रन कॉन्करेंटली। ठीक है, कि क्या हमें साथ साथ चलाने की ज़रूरत है। एनालाइज द पोटेंशियल ऑफ स्कीम टू अचीव डेवलपमेंट बेनिफिट एंड इक्विटेबल ग्रोथ। तो पहले तो हमें थोड़ा सा इनको इंट्रोडक्शन में इनको एड्रेस करना है, फिर ऑन मेरिट के बेसिस पे कि क्या हमें दो स्कीम जो कि एक ही टाइप का डाटा ले रही हैं, नॉट एग्जैक्टली एक ही टाइप का बट हाँ, तो चलाने की ज़रूरत है। ठीक है, और उसमें मेरिट बेसिकली बताना है कि इसको चलाने से हमारा क्या फ़ायदा है। देन लास्टली हमें एनालाइज करना है पोटेंशियल इन डेवलपमेंटल ऑब्जेक्टिव एंड इक्विटेबल ग्रोथ। ठीक है भाई, देखते हैं क्या इंट्रोडक्शन लिखा है। बोथ आधार एंड NPR स्कीम आर अबाउट मेकिंग कॉम्प्रिहेंसिव database of citizen by collecting complete information including biometric information. This database creation including biometric, अभी तो फिर गड़बड़ हो गया ना, कंप्लीट इन्फॉर्मेशन फिर रखिए, इसको हटा दीजिए। This database creation including biometric information has led to debates about privacy surveillance and became a source of litigation। बहुत अच्छा, ये तो लाइक मैं डाउट में जा रहा हूँ भाई कि इतना अच्छा कैसे आ रहा है। वेरी गुड, आपने सारा इशू लाइक बहुत अच्छे से इस चीज़ को एड्रेस किया है। कॉन्करेंट रनिंग स्कीम, फ़ायदे हैं इसके, मेरिट पे हाँ है नहीं है हाँ, तो बहुत अच्छा अप्रोच आपका, फ्रेमवर्क भाई। हाँ,
कि कुछ फ़ायदे हैं, कुछ नुकसान हैं, कि दोनों के ऑब्जेक्टिव अलग हैं, दोनों के लिए लाइक एनपीआर का लेजिस्लेशन सोर्स अलग है, इसका यूआईडीआई एक्ट आया था, अथॉरिटीज़ अलग हैं, और ये तुम्हारा रेगुलर लाइक पॉपुलेशन का रजिस्टर है, तुम्हारा रेजिडेंट का है, तो ये है, ये डिफरेंट पर्पज सर्व करेगा, डिजिटाइज है, तो वो आप बातें कर दोगे। पोटेंशियल टू अचीव डेवलपमेंट बेनिफिट एंड इक्विटेबल ग्रोथ। तो एनपीआर का तो क्या है, ये आप मुझे अगर बता पाएँ या देख पाएँ तो ठीक है, क्योंकि आधार का तो सबको दिख रहा है भाई, है ना, डीबीटी, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र, यूडीआई, मतलब बहुत जगहों पे इसका तो है, इंक्लूजन एक्सक्लूजन एरर हटाने में यू कुड हैव टॉक्ड ऑल अबाउट दोज थिंग्स। एनपीआर का कैसे होता है ये अगर बता पाओ तो डिस्कशन के टाइम पे बताना, बिल्कुल, आई वुड बी ऑल ईयर्स। So that addresses the thing, like you address this thing and that's it. आप कंक्लूजन एक डाल देते कि both the schemes क्या था इसमें ओवरऑल are envisaged to have different objective and needs to be I'll have to think, needs to be implemented in their respective field। ठीक है, इन्होंने और अच्छा थोड़ा सा लग रहा काम किया क्या। आधार, इट इज़ अ 12 digit identification number issued by UIDAI on the behalf of Government of India and to avail government scheme benefit। हाँ, जो मैंने यहाँ पे उसमें बात किया था ना, आप उसमें आप ये चीज़ बात कर सकते हो, अपने इंट्रोडक्शन में ही ये बात लिख दी, ठीक है, कि इनका पर्पज़ अलग था। एनपीआर पॉपुलेशन रजिस्टर प्रिपेयर्ड फॉर क्वान्टिफिएबल डाटा ऑफ टोटल पॉपुलेशन, ठीक है, तो पर्पज़ डेफिनेटली बिल्कुल अलग है। अथॉरिटी हमने पहले ही आंसर में मैंने बता दिया कि ये चीज़ें थी, बट बोथ हैव लेड टू मैटर ऑफ नेशनल डाटा, ओके, both have led to matter of नेशनल डिबेट, समथिंग आप ये कहना चाह रहे हो, लिटिगेशन, ठीक है, तो यहाँ पे थोड़ा सा क्लियर नहीं है ना एक्सप्रेशन। ओके, सो हाउ concurrently, separately, both scheme to run, potential of scheme, limitation, way ahead। आप थोड़ा सा यू हैव डेविएटेड के लिए आप फर्स्ट वाला आंसर एक बार फिर से देख लीजिए। इन्होंने क्या किया, सीधा सीधा जो इशू था उसको सिंपली यही कनेक्टिंग लाइन में एड्रेस कर दिया कि लिटिगेशन और ये हो रहा है। फिर कॉन्करेंट रनिंग के हमें मेरिट बताने थे कि मेरिट बेस इस पे क्या हमें डिस्कस करना है ना, ऑन मेरिट डिस्कस वेदर और नॉट स्कीम नीड टू रन कंकरेंटली। तो हाँ करना है, मेरिट है उसके भी, नहीं करना है उसके भी मेरिट है, ठीक है, या डीमेरिट है कंकरेंटली रन करने के, उसके डीमेरिट है, तो इसलिए नहीं भी करना चाहिए। तो ये दोनों बातें कह के फाइनल कंक्लूजन आप दे दोगे। देन उसका आपको बताना था पोटेंशियल, जो कि आपने यहाँ पे मिस कर दिया है, नहीं क्या, पोटेंशियल ऑफ स्कीम्स, ठीक है, हेडिंग ही तो डाली है, तो ओके। कॉन्करेंटली, अच्छा आपने डिफरेंट अप्रोच ही ले लिया है, कॉन्करेंटली अगर रन करें तो, और सेपरेटली, देखो ये पूछा नहीं है आपने, या जूम कर लिया है ना कि हम सेपरेटली रन करेंगे, ऐसा कहीं पे लिखा नहीं है, आपने डायरेक्ट निगेशन लिया है कॉन्करेंट का कि सेपरेट है, बट दिस डज नॉट मीन, हो सकता है इसका एक और निगेशन के लिए हमें एक ही स्कीम कर दे, एक इंटीग्रेटेड स्कीम कर दे, राइट। तो जितना पूछा है उसी पे स्टिक रहिए, ठीक है। सो दैट्स द थिंग कि आप ऐसे अगर आंसर करोगे तो समटाइम यू मे डेविएट, जो कि ये बढ़िया एग्जांपल है, ठीक है। तो जो इन्होंने पूछा है सिर्फ उसका आंसर करिए कि कौन करेंटली रन करना चाहिए, यस उसके मेरिट हैं ये जो पहले वाले आंसर में हमने देख लिया। बाकी पोटेंशियल आपने बात कर दी, लिमिटेशन बात कर दी, वे हैड वन नेशन वन आइडेंटिटी। कंक्लूजन में जैसे बोला ना कि डिफरेंट पर्पज वाला, आप आखिरी वही करते कि सिंस बोथ द स्कीम हैव डिफरेंट पर्पज इन फुलफिलिंग नीड्स टू बी इम्प्लीमेंटेड कॉन्करेंटली, जो भी है, जो आपको, अगर आप इसमें कई लोग निगेटिव में भी बात कर सकते थे उस टाइम पे,
तो अगर आप निगेटिव में बात करते तब आप बोलते कि डू नॉट नीड टू बी रन कॉन्करेंटली बट रादर इंटीग्रेटेड भी कर सकते थे या एक्सटेंडेड कर सकते थे, जो भी आपको उस टाइम पे लगता। हम हाइंड साइड पे देख रहे हैं तो इसलिए अलग लग रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, द साइज ऑफ कैबिनेट शुड बी एज बिग एज गवर्नमेंट वर्क justifies and as big as प्राइम मिनिस्टर कैन मैनेज एज अ टीम। ठीक है भाई, एक अच्छी बात इन्होंने कह दी कि पैरामीटर के लिए हाउ फार इज द एफिशिएंसी ऑफ गवर्नमेंट देन इनवर्सली रिलेटेड टू द साइज ऑफ कैबिनेट डिस्कस। तो कैबिनेट के साइज पे इन्होंने बात किया है भाई। कैबिनेट और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर में डिफरेंशिएट करिएगा, ठीक है ना। इसके अलावा इन्होंने क्या लिखा है, पहले इनकी कॉपी पढ़ते हैं, यही क्वेश्चन है ना कि हाउ फार एफिशिएंसी इज हाउ इनवर्सली रिलेटेड टू द साइज ऑफ कैबिनेट। मतलब ये कहना चाह रहे हैं कि एफिशिएंसी विल गो डाउन इफ कैबिनेट साइज कैप साइज गोज अप। ठीक है, ये कहना चाह रहे हैं, कहने क्या चाह रहे हैं, कह ही रहे हैं, कह रहे हैं कि कितने लेवल तक की जो है ये रिलेशनशिप बनता है। ठीक है, ओके लेट्स सी। 91st अमेंडमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन हैज लिमिटेड द साइज ऑफ कैबिनेट। देखो मैंने बोला था ना, ये काउंसिल ऑफ मिनिस्टर और कैबिनेट में डिफरेंशिएट करिए। ये काउंसिल ऑफ मिनिस्टर का साइज इन्होंने 15% किया है, कैबिनेट का नहीं। कैबिनेट इज अ वेरी डिफरेंट टर्म दैट हैज यूज्ड इन इंटायर कॉन्स्टिट्यूशन जस्ट वंस। और कहाँ पे यूज हुआ है अगर आप बता पाए तो बहुत बढ़िया। आई विल गिव यू अ हिंट एज वेल, इट इज यूज्ड इन emergency provisions. Article 75 of Indian Constitution deal with the appointment of PM and Council of Minister. 91st amended provision that strengthen the Council of Minister not to be less than 15% total size. देखो इसमें ना कई बार ये होता है कि कुछ लोग काउंसिल ऑफ मिनिस्टर को कैबिनेट से इक्वेट भी करते हैं और बोलेंगे भी, कई लाइक आई हैव केम अक्रॉस मेनी टीचर्स हु डू दैट, और कई जगह पे आपको आंसर में भी मिलेगा, बट बी प्रिसाइज। ठीक है, जब यूपीएससी इस चीज़ पे स्पेसिफिकली क्वेश्चन पूछ चुका है कैबिनेट शब्द पे प्रीलिम में, और जो जो कॉम करके आए थे ना काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स की जगह पे, सबका गलत हुआ है, तो बी प्रिसाइज। ठीक है, इट इज़ नॉट टॉकिंग एग्जैक्टली अबाउट दिस थिंग बट रादर अ मैटर ऑफ प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट। ठीक है, कि अगर बहुत बड़ा साइज हो जाएगा तो डिफिकल्ट हो जाएगा। रिलेशन बिटवीन एफिशिएंसी ऑफ गवर्नमेंट एंड साइज ऑफ कैबिनेट, एडवांटेज डिसएडवांटेज। ओके, अब यहाँ पे देखो इस चीज़ को कैसे आंसर करते, पहले इनका मैं पढ़ लेता हूँ फिर मैं बताता हूँ। एज कॉम मोस्टली इंक्लूड मेंबर ऑफ कैबिनेट मिनिस्टर विच मेजॉरिटीली रन द गवर्नमेंट बट nowadays the size of cabinet for government work PM role managing has been in debate due to internal conflict and working efficiency. कैबिनेट जो है ना कंसिस्ट ऑफ PM and 6 to 8 मिनिस्टर डेजिग्नेटेड बाय हिम। ठीक है, जनरली 4 to 8 जनरली मैक्सिमम साइज आता है, मतलब वेरी करता है। 5 to 6 इज कॉमन साइज कैबिनेट का। ठीक है, तो ये आप ध्यान में रखा करिए। जनरली फाइनेंस मिनिस्टर, डिफेंस मिनिस्टर या होम मिनिस्टर, कुछ इंपॉर्टेंट मिनिस्टर ही इसमें होते हैं, सब नहीं होते हैं। तो दैट इज इट, जो 7 नंबर आता है ना उसी के आसपास ये घूम फिर के आता है। एंड इट इज़ लाइक जो ये कह रहे हैं ना, इट इज़ साइंटिफिकली प्रूवन फैक्टर कि जो मैक्सिमम ग्रुप साइज होता है ना, एफिशिएंट ग्रुप साइज, आप साइकोलॉजी में, सोशल साइकोलॉजी में पढ़ोगे कि GROUP, ग्रुप साइज जो है ना, टू बी इफेक्टिव इट शुड नॉट बी मोर देन दैट। उसके बाद जो है ना एफिशिएंसी गोज डाउन। ओके,
Efficiency of government inversely related to the size of cabinet. Ministry wise performance, emergency responsibility, recent creation, लिमिटेशन साइड ऑफ कैबिनेट विथ ये रिसोर्स। अब कैसे आप सोच नहीं पाए हो, अगर रही गवर्नेंस वाले एस्पेक्ट थोड़ा सा ध्यान में रहते ना तो ये होता है। देखो इससे क्या हो जाएगा, अगर बड़ी कैबिनेट हुई ना, जैसे 10-12 है मिनिस्टर हो गए, तो आप मीटिंग नहीं जल्दी आसानी से कन्वीन कर पाओगे। कोई कहीं पे घूम रहा है, कोई कहीं पे घूम रहा है, तो टाइम पे फर्क पड़ता है। ठीक है, सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है, कई बार आपको इमरजेंसी डिसीजन लेने पड़ते हैं, कैबिनेट मीटिंग बुलानी पड़ती है, मैटर ऑफ अटमोस्ट या पब्लिक इम्पोर्टेंस, तो उस पर होता है टाइम सबसे बड़ा एक फैक्टर हो गया कि ये जाता है। देन आपका डिसीजन क्वालिटी पे भी असर पड़ता है, अगर बहुत ज़्यादा है तो उसको कन्वे करना, डिस्कस करना डिफ़िकल्ट होता है, मैम लाइक मैनेज करना डिफ़िकल्ट होता है। ठीक है, देन इफेक्टिवनेस और कम हो सकती है इसकी वजह से। खासतौर पे पीएम का जो है, जनरली क्या होता है, इट इज़ लेड बाय पीएम होता है। तो ये चीज़ें जो हैं, ये वाले एस्पेक्ट आपको बात करने पड़ेंगे और देखना पड़ेगा। जब आप लक्ष्मीकांत फिर से देखना तो बात इसमें लक्ष्मीकांत ने कुछ एस्पेक्ट बड़े आराम से डील किए हुए, तो यू विल हैव टू लुक दोज थिंग्स। तो मैंने एग्जांपल के लिए बता दिया कि यहाँ पे ये इन एस्पेक्ट को आपको दिखाना होगा कि कैसे जो है कैबिनेट के साइज से बढ़ने से जो आपका क्या है, ये बोल रहे हैं कि गवर्नमेंट देन इनवर्सली, तो आप ये बताओगे कि कितना, ठीक है ना, कितना बढ़ेगा कैबिनेट तो एफिशिएंसी विल गो डाउन। तो इसमें आप थोड़ा सा साइज पे बात कर सकते थे। ठीक है, देन एक तो आप बात करते, देन एफिशिएंसी का बताते, देन आप कुछ एग्जांपल देते नेशनल और इंटरनेशनल का। ठीक है, लिमिटेशन, रिसोर्स यूटिलाइजेशन, अब ये अगेन नॉट एग्जैक्टली टू द पॉइंट, बट ये सब चीज़ें चल जाएंगी तब जब आपको एग्जैक्टली आंसर नहीं आता है, देन यू हैव टू यूटिलाइज दिस थिंग्स। ठीक है, वे हेड क्या लिखा है, विद मिनिमम गवर्नमेंट मैक्सिमम गवर्नमेंट्स अप्रोच विद आईसीटी। अब ये मुझे बताओ भाई कि कैबिनेट में कौन सा आईसीटी, कैबिनेट मीटिंग्स में, कैबिनेट डिसीजंस में कैसे आईसीटी लगाओगे, उससे कैसे लाइक बहुत ज़्यादा फायदा हो जाएगा, क्या ईमेल करोगे, क्या करोगे, वहाँ सिक्योरिटी कंसर्न होते हैं। ठीक है ना, कैबिनेट की मीटिंग के बहुत इम्प्लीकेशन है, जैसे पीएम की कॉल्स हाईली सिक्योर होते हैं, इनकी मीटिंग, इनके डिस्कशन, डिबेट और डिसीजन बहुत सिक्योर होते हैं। तो आप कैसे ये बात कह रहे हो, इससे क्या असर पड़ेगा हमारा एफिशिएंसी पे, वो आपको थोड़ा सा दिखाना पड़ेगा। ठीक है, बट आपके पास पैरामीटर ही नहीं तो कैसे दिखाओगे भाई। तो पैरामीटर लेके जब बात करोगे ना कि एफिशिएंसी इन टर्म्स ऑफ लाइक टाइम, डिलीवरी ऑफ सर्विसेज, जो भी है डिसीजन मेकिंग है ना, वो इफेक्टिव होगा, तब आपका ये होता है कि हाँ आईसीटी लगाएंगे तो डिसीजन मेकिंग बेटर होगा। बट नाउ यू कैन सी कि उसका रिलेवेंस कम है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दो 100% FDI is already allowed in non-news media like trade publication and general entertainment channel, the government is mulling over the proposal for increased FDI in news media or for quite some time। ठीक है, FDI इन मीडिया पे बात हो रही है। ओके ओके, what difference would an increase in FDI make? क्रिटिकली इवेल्युएट प्रोस एंड कॉन्स। तो क्रिटिकली यहाँ पे हमें FDI कहाँ पे, न्यूज़ वाले में हमें स्पेसिफिकली डील करना है कि न्यूज़ मीडिया में अगर हम FDI बढ़ा देते हैं तो उसका क्या असर होगा। दोनों है, प्रोस कॉन्स दोनों हैं। ठीक है ना, तो कैसे होगा वो आपको क्रिटिकली से तो ज़्यादा मतलब पहले तो मालूम होना चाहिए कि बेसिक्स क्या हैं, बहुत बेसिक में क्या असर पड़ेगा। चलो देखते हैं, फर्स्ट कॉपी पढ़ते हैं भाई, इन्होंने क्या इंट्रोडक्शन लिखा है, इन्होंने तो सब छोड़ ही रही रखा है। तो ये आपको पहले तो अगेन लास्टली क्या जो इसकी वजह से जो है ना, जो
एफिशिएंसी पे असर पड़ेंगे, उनको आइडेंटिफाई करो भाई। एफिशिएंसी कैसे, किस टर्म में इफेक्ट होगी, ठीक है ना। 3-4 एटलीस्ट पॉइंट आप तैयार करो। ये अलाउड इन नॉन न्यूज मीडिया, ओके पढ़ लिया हमने क्वेश्चन। इंट्रोडक्शन देखते हैं। 100% FDI allowance resulted in growth of trade publication and general entertainment sector after the out after this outcome government also proposing to these outcomes government is also proposing to increase the limit of FDI in news media, but increase in FDI limit news media can have multidimensional effect again। पहले से बेहतर हुई हैं चीज़ें, बट काम करने की अगेन ज़रूरत है, ठीक है। तो मेक सम स्ट्रेटेजी भाई, कि आप पूरा एक बार सेटिस्फाई हो जाओ कि हाँ ये चीज़ है, देन राइट डाउन इंट्रोडक्शन, बट विद ड्यू टाइम आ जाएगा, है ना। तो उस चीज़ को आप बार बार करते रहो, है ना। तो क्या होगा ना कि फर्स्ट फ्यू टाइम्स इट विल टेक सम टाइम to grasp, even to adopt कि मैं पहले ही कर लूँ, but once you start doing this, these mistakes will go away, and this is very important to leave a good impression, you know। there is a saying, first impression is last impression, सबने सुना है, but there is a very like big truth behind it कि हाँ जो first impressions होते हैं they are lasting, they are quite lasting in terms of your एग्जामिनेशन ऑफ योर कॉपी। तो अगर पहला ही इम्प्रेशन हो गया, तो दिस वन स्ट्रेटेजी आई लाइक अडॉप्टेड, एंड जो लोग मेरे साथ हैं जो अभी लवासा में बैठे हैं 97th फाउंडेशन प्रोग्राम कर रहे हैं, उनके साथ हमने मिलकर बनाया था कि जो पहले एटलीस्ट 2 क्वेश्चन जो है ना, एग्जामिनर इज गोइंग टू सी देम, तो भले वो 10-10 मिनट हम लें, बट उनमें ऐसा इंप्रेशन क्रिएट करेंगे टाइम लेके भी कि एक एग्जामिनर को ऐसा फीलिंग आए कि भाई ये बहुत पढ़े लिखे बंदे हैं, यही सब जानते हैं। मतलब वहीं पे एक डिफरेंशिएट क्रिएट कर लेना था, एक एज क्रिएट कर लेना था एग्जामिनर के माइंड में कि वी आर बेटर देन द रेस्ट ऑफ कंपटीशन, एंड इट यील्डेड रिजल्ट। सो कीप मेक दिस नोट एंड प्रैक्टिस इट व्हेनेवर यू आर राइटिंग द होल टेस्ट, कि पहले 2 जो आंसर है ना, make them very distinct as better as you can, take 20 minutes if it requires, फिर आप घसीटा मार दो, क्योंकि like I said first impression has lasting impact। उसके बाद आप सीधे चीज़ें डालते जाओ, हेडिंग डालते जाओ, अगर हेडिंग रिप्रेजेंटेटिव है marks will flow out of examiner's pen। okay difference in an increase in FDI made in न्यूज़ सेक्टर, तो इसकी वजह से क्या डिफरेंसेज आए हैं। तो भैया देखो सीधा सीधा भी जो ये लोग पूरा कर रहे थे ना क्रैकडाउन कई मीडिया हाउसेस पे, तो 2 चीज़ें होती हैं। एक तो फॉरेन इन्फ्लुएंसेस बढ़ते हैं, FOREIGN, फॉरेन इन्फ्लुएंसेस विल गो अप, लाइक ब्रॉडर लेवल पे बात कर रहा हूँ, इसको आप अगेन ब्रेक डाउन करोगे 3-4 पॉइंट में, और डोमेस्टिक कम होता है, ठीक है। इसी में आप बात कर सकते हो कि कैपिटलिस्ट या सेक्शनल है, जो भी है आइडियोलॉजिकली जो है इसका इफेक्ट पड़ता है। जो आप देखते हो ना कि कई रिलीजियस ऐसे जो है आइडियोलॉजी प्रमोट की जाती हैं, तो दैट फैक्टर इज डेफिनेटली देयर। माउथ पीस बन जाते हैं, डेवलपमेंटल प्रोजेक्ट के जाते हैं, सारी चीज़ें जो हैं अप्लाई होंगी। डोमेस्टिक में होगा, गवर्नमेंट कंट्रोल जो है वो लूजन होता है, तो इससे क्या होता है ना कि अकाउंटेबिलिटी जो है गवर्नमेंट की और बढ़ती है। तो दीज आर द डिफरेंट एस्पेक्ट, इसी के लाइन पे आपको लिखना है कि मोर अकाउंटेबल, मोर ट्रांसपेरेंट, क्योंकि नाउ दे हैव डिफरेंट सोर्स ऑफ फंडिंग, तो ये घुस घुस के सवाल पूछेंगे, ठीक है। तो जो अगेन पैरामीटर वहाँ डिस्कस किए थे ना, अकाउंटेबिलिटी, ट्रांसपेरेंसी, ठीक है, तो वो एस्पेक्ट आप यहाँ पे लाओगे, इफेक्टिवनेस, ये सब चीज़ें जो हैं 4th पिलर वाला, तो वो बढ़ जाता है, ठीक है। तो ये प्रॉस इधर के हैं। अदरवाइज अभी जो
चल रहा था ना कि गवर्नमेंट कंट्रोल, तो वो भी हो सकता है कि भैया इट्स नॉट दैट फॉर फेच्ड dream or expression. It happens, it has happened during World War, it happened, it does happen in China, it happens in Russia, that media houses are controlled. China में तो भाई extremely controlled है. So that's the reason. अगर वहाँ पे foreign like Times और ये सब जाके लिखने लग जाएं, जो कि अभी लिखते हैं, तो Chinese people will start revolting भाई. And that's why again freedom movement के टाइम पे भी that there was so much emphasis on freedom of press. तो ये है दिन, आपको यहाँ पे थोड़ा सा आर्टिकल 19 से कनेक्ट करना था, ठीक है ना. अगर आप यहाँ पे कनेक्ट करके दिखा देते फाइनली तो बात बन जाती है. क्रिटिकल इवोल्यूशन, फंडिंग टेक्नोलॉजी, आउटसाइड कंट्रोल इन्फ्लुएंसेज आपने बात की है, बिल्कुल. लेस ऑटोनॉमी एंड या डिसीजन मेकिंग कॉन्स. ठीक है. Free media is fourth pillar of democracy, hence any step by government should not threaten media's freedom. देखिए अब यहाँ पे ना थ्रेटन तो ये स्टेप तो नहीं कर रहा था, नहीं तो और लाइक फर्दर कर रहा था कि अगर आप एफडीआई कर रहे हो तो ये जो आप इसकी बात कर सकते थे कि ये जो है जो एफडीआई अलाउ कर रहे हैं, तो इट इज स्टेप इन राइट डायरेक्शन, एक्सपेंडिंग फ्रीडम फॉर फॉरेन प्लेयर्स. अब वो मीडिया है ऐसा, लाइक दो ही एस्पेक्ट है ना, कि जब तक कि आपकी पॉपुलेशन जो है इज नॉट प्रोन, तो नो वन कैन मैनिपुलेट देम. आप स्विट्जरलैंड में आप करके दिखाओ नई चीज़ें, लोगों को भड़का के दिखाओ रिलीजियस लाइन पे, नॉट पॉसिबल. इट जस्ट हैपन इन इंडिया कॉज सांप्रदायिकता हमारी खानदानों में चलती है. देर आर दादी एंड नाना एंड बाबा, यू नो, खड़े हो जाएंगे वो. सो दिस थिंग्स आर देयर इन इंडिया. तो ये इशू सीरियस इशू है. ओके इन्होंने क्या लिखा है सेकंड हमारा इंट्रोडक्शन. 100% एफडीआई हैज बीन ऑलरेडी अलाउड इन नॉन न्यूज मीडिया बट गवर्नमेंट इज मलिंग ओवर प्रपोजल टू इंक्रीज एफडीआई न्यूज मीडिया फॉर क्वाइट सम टाइम. अब ठीक है, लाइक अगर नहीं आता तो इन सेंस इसमें अभी कुछ आपने एटलीस्ट सेंटेंस सुधार लिया, बहुत अच्छी बात है, ठीक है. तो ये सिंपल आया है, अब इसको थोड़ा सा प्रैक्टिस करते करते बेहतर करना है, ठीक है. अब आपने क्या किया, एरर हटा दिया है, सिंपल आ गया, अब इसको अपग्रेड करना है. कीप ऑन वर्किंग. राइजिंग कंसर्न अबाउट जस्ट यूज ऑफ, जब ऐसे लिखो कर थोड़ा सा हाईलाइट करा कर, जस्ट यूज ऑफ न्यूज मीडिया, सिक्योरिटी कंसर्न, पब्लिक हार्मोनी. हाँ ये आप कुछ चीज़ें हैं जो पॉइंट है, बट इसमें ये जो आप ये लिखा ना, इसमें थोड़ा सा रेलेवेंट मटेरियल एग्जाम्पल आपको डालना पड़ेगा, ठीक है ना. कि स्टेट स्पॉन्सर्ड जो है इन्फ्लुएंस जो इन्होंने फर्स्ट वाले में लिखा है, इस तरह से अगर आप दोगे तो बेहतर होगा. डिफरेंस विल बी मेड by increased FDI, fusing of more capital, information development, increase in efficiency in news media sector, pros consequences. ये अच्छा अडॉप्ट किया है, वेरी गुड. आप ये जो लेके आए हो तो बहुत बढ़िया, चार चार लिख दोगे ना तो इस तरह से बढ़िया है, एंड रिप्रेजेंटेशन अच्छा आ रहा है. वे हेड ITX 1687, यहाँ पे ये जो इन्होंने लिखा है ना फोर्थ पिलर वाली बात, डेमोक्रेसी, आर्टिकल 19, ठीक है. आर्टिकल 19 खुद ही जो बात करता है ना सिक्योरिटी, रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन, तो ये बात कर सकते थे फाइनली कि आर्टिकल 19 जो है ऑलरेडी प्लेसेस रिस्ट्रिक्शन, अगर वो फॉलोड हो रही है तो एफडीआई इज वेरी गुड, आने दो भाई. दैट विल ओनली स्ट्रेंथन द फोर्थ पिलर ऑफ डेमोक्रेसी. तो ये कह के आप कंक्लूड कर सकते थे. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, द सेटिंग ऑफ रेलवे टैरिफ अथॉरिटी. ये अभी भी चल रहा है, ये अभी भी रेलिवेंट है, अभी भी आने के बहुत चांसेस है. इसको अच्छे से तैयार कर लेना, क्योंकि इन्होंने जो बनाया था वो नाम मात्र का एक
हॉलो इंस्टीट्यूशन बना के रख दिया था, और वो भी देयर इज अ वास्ट डिस्क्रिपेंसीज बिटवीन फेयर परफॉर्मेंस, और बात हो रही है इसको बढ़ाने की, तो इट इज रेलेवेंट। क्वेश्चन पढ़ता हूँ फिर से। Setting up of railway tariff authority to regulate fare will subject the cash-strapped Indian Railway to demand subsidy for obligation to operate non-profitable route and services, taking into account the experience in the पावर सेक्टर। ओके, हमें पावर सेक्टर को एक्सपीरियंस को, पहली बात तो ये मालूम होना चाहिए कि क्या है भाई पावर सेक्टर में हमारा एक्सपीरियंस। डिस्कस इफ प्रपोज्ड रिफॉर्म इज एक्सपेक्टेड टू बेनिफिट द कंज्यूमर, द इंडियन रेलवे और प्राइवेट ऑपरेटर्स। बहुत बढ़िया बात कह गया ये क्वेश्चन, क्योंकि देखो जैसे मैं अभी स्टार्टिंग में बोल रहा था ना कि यू हैव टू ड्रॉ कंपैरिजन। यूपीएससी इसीलिए इस चीज़ को अप्रिशिएट कर, देखो खुद ही इन्होंने बात कर दी। ये बेसिकली हम क्या कर रहे हैं, ये रेलवे सेक्टर में इस तरह की बातें लाने की बात कर रहे हैं। यूपीएससी क्या बोल रहा है कि पावर सेक्टर में तो ऑलरेडी ले आए हो, वहाँ का क्या एक्सपीरियंस रहा है भाई। तो इफ़ यू नो, तो यही कनेक्शन ये मालूम है तो इसका भी आप एक टू अ लार्जर एक्सटेंट देख सकते हो। यू कैन प्रोजेक्ट एंड एक्सट्रापोलेट दीज learnings on this other sector which is being proposed to bring about these same changes, क्योंकि यहाँ पे भी यही चेंजेस किए गए थे कि इनको टैरिफ डिसाइड करने की के लिए अलग जो है अथॉरिटी का बेसिकली हटा दिया गया था। पहले जो सेंट्रलाइज अथॉरिटी थी, तो तभी आपको ये टाटा डिस्कॉम और डिफरेंट जो है रिलायंस और ये सब जो है मिल जाएंगे। डिस्कॉम बेसिकली डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज इन पावर सेक्टर। अब उनका हाल तो आप देख ही रहे हो, दे आर इन मैसिव लॉसेस। ठीक है, चलो देखते हैं इन्होंने क्या इंट्रोडक्शन लिखा है भाई। स्टार्ट विद कॉपी नंबर 1। इन्होंने लिखा रेल टैरिफ अथॉरिटी हैज बीन सेट अप टू रेगुलेट कॉस्ट ऑफ रनिंग ऑफ ट्रेन्स। यहाँ पे हो गया है, विल है ना, ये कहाँ बनी भाई, हमें तो नहीं मालूम। बन चुकी है रेल टैरिफ अथॉरिटी, ठीक है। ऐसे अभी अथॉरिटी नहीं बनी है जो इंडिपेंडेंटली विदाउट एनी इंटरफेरेंस। तो ये अभी लाइक उस टाइम पे बात कही गई थी, कमिटी आई थी, मैं नाम बोल रहा हूँ, बट देयर वाज अ कमिटी विच रिकमेंडेड दैट देयर शुड बी चेंजेस, और उस चेंजेस में शायद अनिल ककोदकर कमिटी थी, देख लेना एक बार। तो उस कमिटी ने बात कही थी टू ब्रिंग अबाउट दिस चेंजेस। तो उसी के लाइन पे यूपीएससी बोल रहा है कि अगर हम चेंजेस लाएंगे तो हमारा पावर सेक्टर में भी ऐसे रहेंगे सिचुएशन, तो उससे हम क्या सीख सकते हैं, ठीक है ना। और उसमें भी क्या स्पेसिफिकली हमें करना है कि इफ प्रपोज्ड रिफॉर्म इज एक्सपेक्टेड टू बेनिफिट, किसको बेनिफिट होगा अगर ये रिफॉर्म आता है, कंज्यूमर को होगा, खुद जो अथॉरिटी इंडियन रेलवे उसको होगा, प्राइवेट कंटेनर ऑपरेटर। तो देखो कंज्यूमर तो ऑलरेडी लाइक कंज्यूमर में जो एक सेगमेंट है कौन सा, जो यात्री है, जो ट्रैवलर, ठीक है ना, ये सबसे ज़्यादा फायदे में है। घाटे में कौन है, आपका जो माल ढुलाई वाला है ना, ये कंटेनर ऑपरेटर जो बात कर रहे हैं एग्जैक्टली। तो मालगाड़ी या फिर जो फ्रेट सेगमेंट है वो सबसे ज़्यादा हमारा घाटे में चल रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे आपको ये साइड लेके आना पड़ेगा जो कि लाइक एक्सपेक्टेड है, बट पावर सेक्टर वाले पे भी आपको कमेंट करना पड़ेगा। विदाउट दैट अगर आप करते हो तो हाफ कंप्लीट आंसर होगा। इफेक्ट ऑफ प्रपोज रिफॉर्म, डिफरेंट स्टेक होल्डर, कंज्यूमर, इंडियन रेलवे, कंटेनर ऑपरेटर। ठीक है, ओवरऑल आपने एटलीस्ट जो ऊपर डिमांड समझ के एक इंट्रोडक्शन सही लिखा है, लाइक नॉट एग्जैक्टली टू द पॉइंट बट ठीक है। बट ये गड़बड़ कर दी कि सेटअप नहीं हुआ है, विल है ना,
तो ध्यान दीजिए, सिली मिस्टेक नहीं आप अफोर्ड कर सकते हो, ठीक है। दिस इज अ ब्लेंडर। चलो सेकंड कॉपी देखते हैं इन्होंने क्या लिखा है। एज पर मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे रिपोर्ट, द रेलवे वर इन लॉसेस below expected revenue, so government has set up railway tariff। भाई मुझे बताना कहाँ पे ये सेटअप हुआ है, इधर आई एम नॉट इन्फॉर्म्ड और आप एक्सट्रापोलेट कर दिए हो ज़्यादा चीज़ें। अथॉरिटी टू रेगुलेट फेयर, ओके, गवर्नमेंट हैज सेटअप फेयर्स विल सब्जेक्ट द कैश स्ट्रेप रेलवे टू मीट द सब्सिडी डिमांड फॉर ऑपरेटिंग इन नॉन प्रॉफिटेबल रूट एंड सर्विसेज। इतना ज़्यादा नहीं, अब ये नहीं इतना एग्जैक्ट लाना है, पूरा आप कॉपी कर रहे हो फिर तो क्वेश्चन को ना, इतना ज़्यादा नहीं। बट mere regulation fare will not enough to address the concern so far। पावर सेक्टर रिफॉर्म, पावर सेक्टर में क्या था हमारा रिफॉर्म में, एक रेगुलेटरी अथॉरिटी बनी, ठीक है, उसने टैरिफ सेट कर दिए भाई कि अब जो डिस्कॉम है इतने पे ही देंगे, तो उसमें डिस्कॉम्स स्टार्टेड टू गो इनटू द लॉसेस। अभी भी जो चल रहा है उसके लिए उदय स्कीम आई थी, ठीक है। तो पॉइंट ये है कि आपको एक इंडिपेंडेंट, लाइक पूरा इसका कहने का मतलब ये है, इस पूरे क्वेश्चन का कोर ये है कि इफ यू वांट इट टू बी efficient, effective in running without such problems like Uday या massive losses, then you have to make it market driven, ठीक है। तभी आपका प्रॉफिट आएगा, प्रॉफिट आएगा तो इन्वेस्टमेंट होगा, इट विल लीड टू बेटरमेंट, ठीक है। तो मार्केट ड्रिवन आपको बनाना पड़ेगा। बट समस्या ये है कि इंडियन रेलवे इज मेजर सोर्स फॉर द लाइक मेजॉरिटी ऑफ पॉपुलेशन में सबसे ज़्यादा जो है यूज जो है यात्री में इसी से जाते हैं। अब इससे जाते हैं तो इट वुड बिकम अ मैटर ऑफ पब्लिक ग्रीवांस, लाइक ह्यूज पब्लिक ग्रीवांस एंड पॉलिटिकल लाइक डिसअफेक्शन टुवर्ड्स व्हाटएवर द रूलिंग पार्टी इज। तो ये लेके आ नहीं रहे। तो दिस इज द थिंग, अंडरलाइंग फैक्टर, जिसको आपको हाईलाइट करके यहाँ पे इसमें लिखना था। रिफॉर्म टू बेनिफिट, रेलवे में रिफॉर्म होता तो कंज्यूमर जो है, इसमें अगेन दो सेक्शन जो से बात किया, वो इंडियन रेलवे डेफिनेटली इसको फ़ायदा होगा इनको। हाँ, ये भी आपको मार्केट बेस्ड प्राइस इनको मिलने लगेगा, ठीक है। कॉम्पिटिटिव अगर प्राइसिंग आ जाएंगी अगर इंडिपेंडेंट रेगुलेटर अथॉरिटी, दिस विल बेनिफिट। इसमें जो यात्री सेक्शन है वो उसको नुकसान होगा, जो फ्रेट है उनको फ़ायदा होगा। लिमिटेशन में ही पॉलिटिकल कंपल्सन्स and a dominance of railway in travel and ट्रांसपोर्टेशन, मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन, ठीक है। तो ये आपके सबसे बड़े लिमिटेशन थे। वे आर हेड अडॉप्टिंग वर्मा कमेटी रिकमेंडेशन। देखो भाई, ये ना हाफ बेकेड चीज़, अगेन मैं आपको सेकेंड टाइम बोल रहा हूँ, इट डजंट फील गुड। आपका वर्मा कमेटी में क्या अडॉप्टिंग, कौन सी रिकमेंडेशन, फॉर व्हाट? आप थोड़ा तो हिंट दो। अगर जब एकदम मर रहे हो ना कि हाँ भाई 1 ही मिनट बचा है पूरा आंसर लिखना है वी एड में, तो यू कैन जस्ट नेम ड्रॉप एंड ये कर सकते हो। बट अदर देन दैट, अगर मरने वाली सिचुएशन नहीं है कि लास्ट लाइक 2 मिनट बचे हैं और आखिरी क्वेश्चन लिख लो, देन इट इज एडवाइज। अदरवाइज लाइक गिव अ होल पिक्चर, क्योंकि यही नंबर ड्रॉप करने से पहले एग्जामिनर आपकी लाइन पढ़ेगा। अगर उसको डिसअफेक्शन मिला या डिससेटिस्फेक्शन मिला तो 5 की जगह पे 4 नंबर हो जाएंगे, 6 की जगह पे 5 हो जाएंगे, तो सीधे 1 नंबर का ड्रॉप यहाँ पे है। प्राइमेसी एंड रिसेंसी इफेक्ट देख लेना क्या होते हैं। प्राइमेसी इफेक्ट जो मैंने बोला, पूरे लाइक ओवरऑल कॉपी के लिए वी सेक्रीफाइस 20 मिनट कि हम एक पूरे अपना एक इम्प्रेशन एग्जामिनर के दिमाग पे
एजुकेटेड या बेटर स्टूडेंट का बना है, तो वो हमने ट्रेड ऑफ किया है यहाँ पे। रिसेंसी इफेक्ट होता है कि जो एकदम लास्ट की इंफॉर्मेशन होती है, प्राइमेसी होता है कि पहली जो इन्फॉर्मेशन होती है उसका इफेक्ट बहुत लाइक लास्टिंग होता है, जो फर्स्ट इंप्रेशन। रिसेंसी इफेक्ट प्राइमेसी नहीं, रिसेंसी है। इट स्टेट्स दैट जो लास्ट में सबसे लास्ट की इंफॉर्मेशन होती है उसका इफेक्ट भी पावरफुल होता है, एंड दैट इज वाई जो अच्छे टॉपर्स हैं उनका कंक्लूजन और इंट्रोडक्शन दोनों ही बढ़िया होता है, बिकॉज दीज आर द थिंग्स एनीवन इंक्लूडिंग माई सेल्फ, माई कलीग्स यूज बिफोर अवॉर्डिंग मार्क्स। So please be aware of these things and incorporate in your answers as much as you can. दोहा हो गया भाई। Okay, next question. The preparation या penetration, अब ये क्या है भाई? You cannot again see, तो इनकी कॉपी से देखता हूँ। The penetration of self-help group in rural area is promoting participation in development program, is focusing socio-cultural hurdles, examine, is for facing, sorry, I am so very sorry, it says कि हमारा जो penetration of self-help group rural area में है वो क्या फेस कर रहा है? सोशियो कल्चरल हर्डल, मतलब क्या कि ये सेल्फ हेल्प ग्रुप में भी जात धर्म लेके आ जा रहे हैं लोग, जो कि फैक्ट है। ये किसी चीज को बख्शते नहीं है, हर जगह पे जात धर्म ले आते हैं। तो आई एम सॉरी। तो इसकी आई एम सो सॉरी। गिव मी अ मोमेंट। वापस से आते भाई। सो सेल्फ हेल्प ग्रुप आर डेफिनेशन है, इनका इंट्रोडक्शन सीधे पढ़ता हूँ भाई, अपने आप को डाइवर्ट करना पड़ेगा। आर इनफॉर्मल ग्रुप ऑफ पीपल हु कम टुगेदर टू एड्रेस कॉमन, this is so unprofessional of me, I'm so sorry. Okay, सो इश्यूज हमने समझ लिया भाई। सिंपल सा क्वेश्चन है कि ज़्यादा हम लोग ले आते हैं, मतलब सोशो कल्चरल हर्डल्स हैं, और खाली भाई नहीं है, लाइक ज़्यादा धर्म भी नहीं है और भी हैं, तो उनको आपको आइडेंटिफाई करना है। और पेनिट्रेशन मतलब है कि उनके फैलाव में और ज़्यादा एडॉप्टेशन में जो समस्याएं हैं उनको एड्रेस करना है। ये दिस इज है हमारा एग्जामिन करना है। एग्जामिन में अगेन डिफरेंसेस आएंगे, ठीक है ना। क्या ये हर जगह है? नहीं, हमारा जात धर्म ही हर जगह पे यूनिफॉर्म नहीं, नो आर इंडिया। कहीं कहीं पे सर चढ़ पे लाइक ऐसा लगता है कि लोगों के सर पे ही चढ़ा हुआ है। देयर आर एरियाज वेयर पीपल आर मॉडरेट, ठीक है। इवन इन रूरल एरियाज देयर आर प्लेसेस। सो डिफरेंसेस होंगे एज लाइक ब्रॉडली स्पीकिंग अक्रॉस स्टेट्स एंड डिस्ट्रिक्ट्स। खास तौर पे जहाँ ज़्यादा डेवलप होंगे तो वहाँ पे कम होंगे। यू कैन अंडरस्टैंड दैट। तो एग्जामिन में आपको यही एग्जामिन करके दिखाना है। ओके, सेल्फ हेल्प ग्रुप इज अ इनफॉर्मल ग्रुप of people which is peer controlled and self governed and come together for common purpose। ठीक है, ये भी एक डेफिनेशन है। तो इसकी लाइक अनुरूप दिरोसिटी कॉपी देखिए, इन्होंने बहुत ही अच्छी प्यारी सी डेफिनेशन लिख रखी है। अडॉप्ट दैट इफ यू कैन, ठीक है। तो टॉपर्स की कॉपी में से जब मिलते हैं ना, तो अच्छी डेफिनेशन हमेशा उठा लिया करो, ठीक है। इन्होंने क्या लिखा है भाई इसकी डेफिनेशन? आर इनफॉर्मल ग्रुप ऑफ पीपल हु कम टुगेदर टू एड्रेस कॉमन प्रॉब्लम हैव प्लेड इंपॉर्टेंट रोल इन कंसर्न रिलेटेड टू रूरल डेवलपमेंट लाइक फाइनेंशियल इंक्लूजन, वुमेन एम्पावरमेंट। हाँ, ये देखो अब यहाँ पे ना आपका
थोड़ा सा ऐसे करके, या तो आप हैज इम्पोर्टेंट रोल इन यहाँ पे करके सीधे सीधे दिखाने के टाइम पे ना, लाइक यू शुड बी लाइक कि ये देख लो पूरी दुनिया दिखा दो, ऐसे छुपा के नहीं है, तो अंडरलाइन करो ऐसी इंपॉर्टेंट चीजें, इट शुड बी शोन विद ओपन आर्म्स लाइक दैट कि हाँ ये देखो, या तो ये करो या फिर रोल या डायग्राम बना दो, ये 2-3 है ना, दिस इज लाइक ओपन आर्म, दिख रहा है ना। तो ऐसी चीजें बहुत अच्छे से लाइक इट इट गिव्स अ गुड इंप्रेशन एंड अच्छा इम्पैक्ट आता है। जो आपने लाइनें जो उठाए ना कीवर्ड, ये बहुत स्टैंडर्ड है, तो यूज दैट। लाइक ये रिप्रेजेंटेशन पे मैं बता रहा हूँ, जो कि अभी आगे रिप्रेजेंटेशन वाला हम काम करेंगे, बट स्टिल अभी दिख गया तो बता दे रहा हूँ, बट उस पर भी हम काम करेंगे, हाउ टू मेक इट इफेक्टिव। ठीक है, तो सेकेंड थर्ड स्टेज का बेसिकली बात कर रहा हूँ, बट स्टिल आता है तो भाई बता देता हूँ। नेक्स्ट है, इन्होंने क्या लिखा है इसमें ही, सोशल कल्चरल हर्डल फेस बाय सेल्फ हेल्प ग्रुप इन रूरल एरिया, स्ट्रिक्ट पैट्रियार्की, बिल्कुल इसकी वजह से वुमेन को नहीं बनाते मेंबर, फॉलोड बाय कास्ट नाम, बिल्कुल कास्ट इज अ वेरी गुड फैक्टर। ठीक है, लैक ऑफ मनी विद वुमेन, देन egalitarian principle about प्रिंसिपल बट बिकम सेंटर ऑफ, देखो ये एक तो एक आइडेंटिटी, कास्ट, रिलीजन, इसके बेस पे एक ग्रुप बनता है। दूसरा कि अगर जो इसमें अपर कास्ट होते हैं ना, तो उनका डोमिनेंस होता है, डोमिनेंस इन एक्सप्लॉइटेशन बाय अपर कास्ट जमींदार, तो ये भी एक बड़ा फैक्टर है। इनएडिक्वेट सपोर्ट ऑफ, इनएडिक्वेट सपोर्ट से ज़्यादा है कि इनमें लाइक कोई स्टैंडर्ड ग्रीवांस रेड्रेशन मैकेनिज्म नहीं है। ठीक है ना, एक बहुत बड़ा फैक्टर है कि आप कहाँ जाओगे, सेल्फ हेल्प ग्रुप तो बना लियो, लाइक जैसे नाबार्ड का शक्ति स्कीम थी तो उनको इंस्टीट्यूशनल स्टेटस दे दिया, बट जो कुछ इश्यूज हैं तो उनको सब कुछ इनको आपस में सॉल्व करना है। बट इफ द केस इज लाइक देयर इज अ डोमिनेंस, देयर आर पीपल, जब फोर्स कन्वर्जन हो सकता है तो फोर्स सेल्फ हेल्प ग्रुप फॉर्मेशन और एक्सप्लॉइटेशन क्यों नहीं हो सकता है। ठीक है, तो ये एक बड़ा इशू है। इनिशिएटिव जीविका कुदुम्बश्री, अब देखो जो पेट्रियार्कल इन्होंने बात की ना, दोनों लोगों ने बात की, बट कुदुम्बश्री कैसा है भाई, कैसा सेल्फ हेल्प ग्रुप है। सी, तो वही आपको बात जो है एग्जामिन में जो है ना, आप अगेन याद रखिए कि पेपर किस चीज़ का है, पेपर 2 का है। पेपर 2 में कभी भी इस तरह की जो चीज़ें आए तो कंपेयर करिए स्टेट्स के बीच में, अमंग स्टेट, और अगर डिफरेंट डिफरेंट स्टेट में आपने कंपेयर कर दिया, देन आपको जैसे QAGC वाला है तो कंट्रीज के बीच में आप कंपेयर करिए, तो एक कंपैरिजन जरूर ड्रॉ करिए अगर अपॉर्चुनिटी मिल रही है तो इट गिव्स अ बेटर इंप्रेशन, है ना। लक्ष्मीकांत ने भी कॉम्पिटिटिव और कोऑपरेटिव फेडरलिज्म ये सब चीजें डाल पाओ तो बेहतर है। देन कल्चर में लैंग्वेज बैरियर, रिलीजियस बैरियर, ठीक है, वी फॉरवर्ड। तो ये वाला एक एलिमेंट आई थिंक आप लोग मिस कर गए हो, और वो लाइक एक एज देता है, इट्स नॉट कि बहुत ही गड़बड़ कर दिया है उसके बिना इनकम्प्लीट है, बट इट गिव्स यू एन एज, एन एक्स्ट्रा मार्क जो है ना आपको इस चीज़ पे डेफिनेटली मिलेगा। तो दिस इज व्हाट आई एम टेलिंग यू, इट विल ऐड 1 एक्स्ट्रा मार्क इन योर इंटायर कॉपी, बिकॉज यू कैन सी बहुत कम लोग इस चीज़ को ऐड करेंगे। जो आपने यहाँ एग्जाम्पल दिया है यही बात करोगे कि ऐसी चीज़ों को प्रमोट करने की ज़रूरत है, सक्सेस स्टोरीज को जो है कंक्लूजन में ही आप फाइनली करोगे कि हाँ देयर आर डिफरेंसेस, और देयर आर एरिया जहाँ पे नहीं है, देयर आर सक्सेस स्टोरी विच नीड्स टू बी प्रमोटेड, वे फॉरवर्ड में आप वो डालोगे। ठीक है, इसमें जो यूज़ ऑफ यहाँ पे आप ICT, ठीक है ना, नीति आयोग एक प्लेटफॉर्म लेके आया था वो टू सेलिब्रेट एंड सक्सेस एंड प्रोपोगेट देयर सक्सेस स्टोरीज। तो ये आप बात कर सकते हो कि जो ग्राउंड लेवल इंस्टीट्यूशन है, आरबीआई का तो नहीं है, नाबार्ड इज देयर, आरबीआई का रूरल एरियाज में उतना कोई रोल नहीं है, तो इनको हम यूटिलाइज कर सकते हैं फॉर
somewhat promotion and upgradation and breaking these सोशियो कल्चरल बैरियर। तो सोचो कितना बढ़िया आपका कंक्लूजन आ जाएगा कि हाँ हमने समस्याएं आइडेंटिफाई कर ली, लिख दिया। अब उनको यही बात हम कंक्लूजन में लिख देंगे एक सॉल्यूशन की तरह कि इस तरीके से हम इन बैरियर्स को तोड़ देंगे। अब आपने देखो क्या लिखा है, आपने कहीं पे कहीं कोई ऐसी बात नहीं की है ना। तो एग्जैक्ट एंड क्लियर एक्सप्रेशन लेके आओगे तो इट इज रिवॉर्डिंग, इट इज बेटर। आपने भी ये चीज़ नहीं बात करी है ना। अवेयरनेस प्रोग्राम तो ठीक है ना, ये तो हर जगह पे लाइक काम कर जाता है ना, कोई भी इशू है तो अगर आप इस चीज़ में कुछ सॉलिड सॉल्यूशन मटेरियल दे पाओ हमेशा गवर्नेंस इश्यूज में, तो इट इज़ ऑलवेज वेलकम। ठीक है, तो दैट कंक्लूड्स आवर पॉलिटी सेशन, और इसके बाद एथिक्स बचता है, तो आई विल सून बी अपलोडिंग दैट टू। सी यू, बाय बाय।